अभी भी आप देखोगे तो ओवरऑल इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड में 60% रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में, एंड दैट इज गोइंग टू ग्रो इवन फास्टर, राइट? एंड वो लॉजिकल है, right? अगर आपके पास बस 5% पेनिट्रेशन है, एज पेनिट्रेशन इंक्रीजेस वो एसेट साइज बढ़ेगी। मार्केट नीचे जाते वक्त किसी को अच्छा नहीं लगता, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, क्योंकि एसआईपी से यू कैन Exactly. कीप बाइंग मोर। I would say that is one of the key things an SIP does. कि आपके लिए it is the best method to reduce Okay. and invest more at a lower average price. लमसम तो सब करते हैं, सबको मालूम है लमसम क्या है, जी. SIP सबको मालूम है। Think about STP क्या है, SIP for लमसम, think of it that, right? आप जब SIP करते हो तो there is no timeline, right? आप perpetual कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव विद अस मिस्टर अविनाश सतवालेकर, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन असेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दिस कैपेसिटी ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग फ्रैंकलिन टेम्पल्टन्स retail and institutional business in India. Mr. Avinash joined Franklin Templeton in 1996 as a management trainee working on Franklin Convertible Securities Fund from March 97 to June 98. Prior to Franklin, he worked for DSP Merrill Lynch in the debt origination group. Previously, Mr. Avinash was the country head of Malaysia and chief executive officer of Franklin Templeton Asset Management Asia, and was responsible for developing the retail and institutional business in Malaysia. Aside from his responsibilities in Malaysia, Mr. Avinash continues to serve as chairman of Vietcom Bank Fund Management, a joint venture between Franklin Templeton and Vietcom Bank in Vietnam. Mr. Avinash was previously the CEO and CIO for VCBF based in Ho Chi Minh City. He oversaw the combined business and investment activities of the group, and under his leadership, Franklin Templeton was one of the first asset managers to launch an open-ended retail fund in Vietnam in 2013. Prior to his role in Vietnam, Mr. Avinash was a vice president, portfolio manager, and research analyst for Franklin Templeton Advisors (FPA), a division of FTPA. He was a member of the Franklin Small Cap Growth Portfolio Management team and was the lead manager for private small cap accounts for FPA. Before that, Mr. Avinash was a vice president and research analyst for Franklin Equity Group. He specialized in research analysis of the computer software industries and IT service companies. Mr. Avinash received a Bachelor of Commerce from the University of Bombay, India, and an MBA in Finance from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a chartered financial analyst, charter holder, and a member of the CFA Institute and the CFA Society of San Francisco, CFASF. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. आज हमने सोचा कि एक ऐसे स्पीकर को लाते हैं जिनको शायद हमने पहले कभी नहीं बुलाया है, and we were very excited to have him when he agreed to do our show today. So today we have with us Mr. Avinash Satwalekar, who is the president of Franklin Templeton AMC. अविनाश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. आज आप पहली बार म्यूचुअल फंड की बात में आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. Thank you very much for having me. वंडरफुल. सो गाइस, जब हम अविनाश जी को लाने वाले थे एंड वी थॉट कि हम ऐसा क्या उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड्स में नहीं हमने डिस्कस किया है किसी भी स्पीकर के साथ. एंड देन वी थॉट कि हमें इतने सारे क्वेरीज आते हैं अराउंड SWP क्या होता है, STP क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं रहता है. तो इसीलिए आज हमने सोचा कि ऑफ कोर्स हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अविनाश जी के साथ, बट उसके साथ वी विल ऑल्सो टच अप ऑन द सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस. तो आज हम SIP, STP, SWP इन सब के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर गोना हैव अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस. ओके. सो अविनाश जी, सबसे पहले ये हम अपने सारे गेस्ट से पूछते हैं कि आप ऑफ कोर्स वी आर गोना आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे. तो कैन यू प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप ने कब अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स ने जो है आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को कैसे मोल्ड किया है. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट यू. Perfect. श्योर. देखिए, so from an investment journey standpoint, I started investing 15 साल का था जब हमने पहले बार इंटर्नशिप की थी. हमारे फैमिली फ्रेंड के पास एक ब्रोकरेज यूनिट थी दलाल स्ट्रीट पे मुंबई में, और वहाँ हमने समर्स में चालू किया था काम. और पहली इन्वेस्टमेंट हम शायद 16 साल के थे जब हमने पहली इन्वेस्टमेंट की, और 6 महीने में वो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई.
तो हमें लगा कि हम ब्रिलियंट है, शेयर है, और बेच दी हमने इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद उसके बाद हमने देखा कि 1 साल बाद दैट सेम इन्वेस्टमेंट वाज डबल ऑफ वेयर आई सोल्ड इट। तो दुगनी हुई थी, राइट? एंड अनदर ईयर आफ्टर दैट वहां से भी डबल हो गई। सो हाउ डिड दैट शेप इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म देखना है। दैट वाज द फर्स्ट लेसन। वो पहला लेसन था कि आपको लॉन्ग टर्म करना है। द सेकेंड लेसन आउट ऑफ दैट इज, अगर हमने थोड़ी भी रिसर्च की होती इस कंपनी के बारे में, आई वुड हैव केप्ट द इन्वेस्टमेंट। ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी थी। इट वाज द अर्ली स्टेजेस, ऑटो इंडस्ट्री में थी। सो टू लेसन्स वेरी क्विकली, लॉन्ग टर्म देखना है और रिसर्च करना है। And then I would say the last thing in the lesson, and that is over time, right? ये investment के बाद I continued on in my career, joined Franklin Templeton. Franklin Templeton में हमने investment side में पहली बार काम किया था, and that 16 साल in the US, and I ended up being a portfolio manager. And वहाँ जो सीखा, which was basically कि the lowest price is not the winner. लोएस्ट एवरेज प्राइस इज द विनर। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टमेंट्स में कि भाई यू वांट टू बाय इट एट द लोएस्ट प्राइस, उससे कुछ फायदा नहीं होता। सी यू शुड नेवर पैनिक कि अगर आपने कुछ खरीदा और उसका भाव नीचे आ गया, दैट्स नॉट अ रीजन टू पैनिक। सो आई लर्न दैट बेसिकली यू वांट टू बाय, यू वांट टू हैव द लोएस्ट एवरेज प्राइस। सो 3 लेसन्स आई गेस इन माय इन्वेस्टमेंट जर्नी हैज बीन, आपको लॉन्ग टर्म करना है, आपको रिसर्च करना है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन गेटिंग द लोएस्ट एवरेज प्राइस। दैट्स इट। Average price. Wonderful. Okay. So, you said कि आपने 16 साल यूएस में बिताए हैं, and that's a reasonably long time. And इसका मतलब ये है कि you had access to a lot of global markets, right? So, क्योंकि आपने बहुत सारे global markets में काम किया है, like US and Vietnam and Malaysia and now of course in India. अब ये बताइए अविनाश जी कि ऐसी एक चीज़ क्या है हमारे देश की इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में जो आपको सबसे अच्छी लगती है, समथिंग दैट यू एडमायर अबाउट इंडियाज इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, और एक ऐसी चीज़ जो शायद आप चेंज करना चाहेंगे? इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी सेट है बहुत बड़ी है, राइट? एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट बिकॉज वी आर इन इंडिया, बट हमारी जो, लेट्स से यू टेक अ स्टेप बैक, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इट स्टार्ट्स विथ हमारी डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब what is the size of our population and what is the average age of our population, बराबर? Now हमारी average age क्या है? 65% of the population is under the age of 35, बहुत young population, 35, yeah. right? Which is the exact opposite of most of the world, right? So that young population, what does that mean? They are starting their careers right now, right? So अगर आपने अभी चालू किया है करियर, तो आपको पहली बार इनकम मिल रही है, आपको पहली बार स्पेंडिंग करने की आदत हो रही है, आपको पहली बार सेविंग्स की आदत हो रही है। सो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर हैपनिंग व्हेन यू हैव अ यंग पॉपुलेशन। तो द बेस्ट एंड मोस्ट एक्साइटिंग, जो एक्साइटिंग है इंडिया के लिए, इज दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, राइट? एज दिस डेमोग्राफिक, जैसी ये डेमोग्राफिक बढ़ती है, राइट, इनकी इनकम बढ़ती है, इनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ेगी, right? And so that is the most exciting. And India's investment landscape is always changing and evolving. ये change जो हो रही है इंडिया में is happening not just at the economic level. It's also happening at the investment level. नए नए funds आ रहे हैं, lots of changes, new styles of investing. बस fundamental investment नहीं है. Now you're getting quantitative investment, multi-factor. You're getting investments in passives. बहुत सारा जो डायनामिज्म है कैपिटल मार्केट्स में, दैट इज कमिंग थ्रू। सो इंडिया इज एक्चुअली एट द अर्ली स्टेजेस, राइट? ये जो चेंजेस जो हो रही हैं, ये अर्ली हो रही है, राइट? दे आर हैपनिंग राइट नाउ एंड दे आर गोना कीप हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट डेकेड। तो ये एक्साइटमेंट है ना। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हम चेंज कर सकते हैं, राइट? तो दैट्स दैट होल थिंग। अगर आप एक दिन के लिए राजा बन जाओगे तो क्या करोगे आप, राइट? सो I would say the change जो है, the number one change I would like to see is हमारी जो focus है on market returns और NAV देखने की,
हर रोज, दैट वी शुड चेंज। एंड ऐसे नहीं कि हमें देखना नहीं है कि व्हाट इज आवर पोर्टफोलियो डूइंग, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली देखोगे तो पोर्टफोलियो चेंजेस नहीं होते ऑन अ डेली बेसिस, वो बस प्राइस चेंजेस होते हैं। हमें क्या करना है, हमें जी वेल्थ बनानी है, और वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, सालों लगते हैं। एंड सो इंस्टेड ऑफ हम्म फोकसिंग इन ऑन कांस्टेंट रिटर्न, हमें क्या फोकस करना है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी चेंज करना है। हमें गोल पे फोकस करना है हम्म कि हमारी गोल क्या है, हम्म हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। या तो हम रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, या तो हम बच्चों के स्कूल्स के लिए कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, या तो हम छुट्टी के लिए कर जी रहे हैं। हम्म हमारी गोल क्या है, वहीं से स्टार्ट करनी है, या राइट, वहीं से शुरुआत करनी है और उसी पे फोकस करना है। एनएवी क्या हो रही है फंड में, इट्स इमटेरियल। आपको क्या देखना है कि हमारे जी ओवरऑल पोर्टफोलियो और हमारी गोल क्या कर रही हम्म है, एम आई क्लोज टू माई गोल। हम्म सो सिंस वी आर अ क्रिकेट क्रेजी नेशन, आप ऐसे जी सोचो, हमारा गोल जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रन रेट है, राइट, हम्म और हमारी रोज की जो ऊपर नीचे होती है वो हमारी करंट रन रेट है। तो आई एम नॉट सेइंग यू हम्म शुड नॉट लुक एट योर पोर्टफोलियो, आप देखो पोर्टफोलियो को, राइट, बट वंस इन अ व्हाइल व्हेन यू आप रिव्यू करोगे तो आपको बस देखना है कि गैप है, करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में गैप है। अगर नहीं है तो परफेक्ट, यू आर ऑन ट्रैक। अगर गैप है या तो यू हैव टू फिक्स इट, या तो आप और पैसे डालो हम्म टू फिक्स दैट गैप, एंड इफ यू आर हम्म अहेड ऑफ इट, हम्म even better. But constantly हम्म देखना is not a healthy sign. So that I would like to change to a, थोड़ा चेंज होना चाहिए। या ओके। आई ऑल्सो थिंक कि सिर्फ अगर आप देख रहे हैं हर रोज तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिएक्ट भी हर रोज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। पर आप अगर देखोगे तो रिएक्ट करोगे ही ना, करोगे राइट। आई या मीन इफ योर एनएवी दैट्स सडनली 2% नीचे आ जाता है तो आप क्या करोगे, हम्म 2% हम्म तो ऑलरेडी हो गया, रियलिस्टिकली आप या कुछ कर तो नहीं सकते, बट यू आर गोइंग टू बी हम्म फोर्स टू थिंक अबाउट इट, कुछ करना चाहिए हमें, या एंड दैट्स ह्यूमन नेचर, या वही चेंज करना ट्रू, है। दैट्स ह्यूमन नेचर। ओके, वंडरफुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। सो आपने बोला कि जो अच्छी चीज़ है, जो आपको अच्छा लगता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है, एंड वी आर प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग अ गुड ग्रोथ इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया का एक बहुत एम्बिशियस गोल है टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, व्हिच इज़ 100 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आप हमें ये बताइए अविनाश जी कि म्यूचुअल फंड्स क्या कंट्रीब्यूट करेंगे इन दिस जर्नी। सो जो इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि 2047 वुड बी से 22 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो विच मीन्स अगले 2 डेकेड्स में हम ऐसा क्या चेंज देखेंगे इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड्स का क्या कंट्रीब्यूशन होगा टू लीड इंडिया टू दिस पर्टिकुलर गोल दैट इट हैज़। देखो, म्यूचुअल फंड्स इज प्रोबेबली द सिंपलेस्ट, सबसे आसान मेथड है या जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन कैपिटल मार्केट्स। सबसे आसान, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबसे ट्रांसपेरेंट है। म्यूचुअल फंड जैसा इंस्ट्रूमेंट इन द कैपिटल मार्केट नन एग्जिस्ट्स। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम म्यूचुअल फंड बिजनेस में हैं, बट इट्स ट्रूली अ वेरी ट्रांसपेरेंट, राइट। सो क्या होने वाला है विथ ऑल दिस ग्रोथ, राइट, ये हम अभी 20 साल से ग्रो कर रहे हैं, इंडियाज इकोनॉमी हैज कंटिन्यू टू एक्सपैंड, फिर भी म्यूचुअल फंड की जो पेनिट्रेशन है वो 5% है। मीनिंग जी 100 लोगों में से इंडिया में बस 5 ही लोगों के पास म्यूचुअल फंड है। दैट इज नॉट इनफ, मोर पीपल हैव टू बी। सो व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है, अमृतकाल जो है 2047, वो जो टारगेट है, जी वी होप टू सी म्यूचुअल फंड्स बिकम मोर एक्सेप्टेड, जी राइट। तो पेनिट्रेशन बढ़नी चाहिए, एंड वी एक्सपेक्ट दैट टू हैपन। जी इफ यू लुक एट ओवरऑल ग्रोथ, राइट, अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखोगे म्यूचुअल फंड की, तो इट्स एक्सपेक्टेड, देयर वाज अ स्टडी डन, शायद पीडब्ल्यूसी ने जो स्टडी की थी फॉर ऑन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, AUM growth is supposed to grow 9 times in the next ओके 2 decades. और वो जो ग्रोथ आने वाली है, द मोस्ट ग्रोथ इज गोइंग टू कम फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर। अभी भी आप देखोगे तो ओवरऑल इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड में 60%
रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में है, हम्म, एंड दैट इज गोइंग टू ग्रो इवन फास्टर, राइट? एंड वो लॉजिकल है, राइट? अगर आपके पास बस 5% पेनिट्रेशन है, एज पेनिट्रेशन इंक्रीजेस वो एसेट साइज बढ़ेगी. So I think that जी, opportunity set for mutual funds to actually help grow. और आप हम्म, दूसरी तरफ से देखो, राइट? ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, व्हाट इज द बेस्ट, सबसे आसान तरीका क्या है फॉर यू एंड मी एज रिटेल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट? म्यूचुअल फंड, जी, राइट? या तो हम्म, आप, आई मीन, द बेस्ट वे इज थ्रू कैपिटल मार्केट्स एंड थ्रू एक्विटीज, एंड वही हमें देखना है. एंड हम्म, आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन over the next 2 decades. Another statistic I'll give you, right? आप अगर देखोगे म्यूचुअल फंड एसेट्स कंपेयर टू जीडीपी साइज, राइट? अभी इंडिया की हम्म, जीडीपी साइज, यू इफ यू कंपेयर इट, वी आर रैंक्ड आई थिंक 4, राइट, इन द 4, वर्ल्ड. yep, नाउ देयर इज नो डाउट कि हम नंबर 3 पे तो पहुंच ही जाएंगे, बट इफ यू हम्म, कंपेयर म्यूचुअल फंड एसेट्स टू जीडीपी साइज, वी आर एट 17%, राइट? okay, The global average is 75%. wow, तो बहुत गैप है, okay, राइट? बहुत गैप है, राइट? अगर 17 का, आई मीन, अब 75 का अगर आप इवन 50 करो, think about the growth हम्म, potential, right? And that is going to happen as we mature, as economy जी, mature हो जाती है, as ये जो younger population है, as they get into the system, as they start investing more, you're definitely going to see that. Okay, yeah. I completely agree with you कि एटलीस्ट पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि पेनिट्रेशन बढ़ा ही है. Mhm. एंड आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द मल्टीपल कैंपेन्स विच आर रनिंग बाय एम्फी, द म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन एंड सो ऑन, राइट? जहाँ हम इतना सारा इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं अबाउट म्यूचुअल फंड्स विद रिटेल इन्वेस्टर्स. सो आई जेन्युइनली थिंक कि एम्फी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, एंड म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करने में हम सब का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड अविनाश जी कि ऐसे कौन से इन्वेस्टर सेगमेंट्स हैं. ऑफ कोर्स आपने बोला कि रिटेल इन्वेस्टर सेगमेंट शायद सबसे बड़ा होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग दिस ग्रोथ, बट क्या आप दूसरे भी इन्वेस्टर सेगमेंट्स देखते हैं जो इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, और यू थिंक सिर्फ रिटेल ही लार्जली कंट्रीब्यूट करेगा, रिटेल इन्वेस्टर सेगमेंट? देखिए, इन एनी मार्केट, राइट, आपने बोला कि म्यूचुअल फंड सही है, has been an amazing tagline, right? And या, no doubt एम्फी ने जो टैगलाइन क्रिएट की थी, दैट इज डन एन अमेजिंग जॉब. बट इसके बावजूद भी व्हाट आर वी एट पेनिट्रेशन वाइज? 5%, या, राइट? तो पेनिट्रेशन इज स्टिल वेरी लो. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन, तो हमारी जो फोकस है, जी, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट. हम्म, व्हाई डू वी मोस्ट पीपल इन्वेस्ट? सबकी जो इन्वेस्टमेंट की जो गोल होती है, फॉर द मोस्ट पार्ट, या तो आप कहते हो एक्सप्लिसिटली कि हम इसी गोल के पीछे भाग रहे हैं, गोल के लिए बचा राइट? रहे हो, और यू डू इट विदाउट सेइंग इट, बट दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, कि आप रिटायरमेंट के लिए, जी, आप सेविंग्स के लिए, हम्म, देयर इज अ गोल जी, बिहाइंड इट, राइट? नाउ व्हाई इज दैट गोल? दैट गोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप रिटायर करोगे तो आपके हाथ में इनकम नहीं आती. At that हम्म, point, it's your savings and your investments that are going to save and fund your lifestyle, right? या, तो आपकी जो expenses है, those are going to come through your savings once you retire, right? जी, So therefore, you need investments more as a social responsible thing also, right? हम्म, अगर आपके पास pension नहीं है, right, which most people don't necessarily have a pension, डोंट हैव, या, right? या, What is your solution? आप रिटायर करोगे, जब इनकम बंद हो जाती है, तो यू नीड समथिंग. सो देर इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट टू दिस ऑल्सो, विच इज वाई आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स विल बी द डोमिनेंट फोर्स इन आवर ओके, मार्केट्स, राइट? आपने पूछा कि कौन से, what types of investors are there? I think there जी, are there are three main areas in the future जहां पे हमें लगता है कि ग्रोथ होने वाली है, और बड़ी ग्रोथ होने वाली जी, है. नंबर वन इज मिलेनियल्स, राइट? हम्म, ये जो कोहॉर्ट है, साइज जो है मिलेनियल्स का, इट्स अ बिग साइज. अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी में,
एंड इफ यू सी इन द लास्ट 5 years, आधे जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में, मिलेनियल्स. सो दैट विल बी अ बिग ड्राइविंग फोर्स. एंड द मोर solution that you have, and in terms of fund solution, जो मिलेनियल्स को अट्रैक्ट करेंगे, द बेटर ऑफ यू आर, राइट? तो आप, Yeah. आई थिंक इन अ ग्रेट एक्सटेंट, मिलेनियल्स के लिए जो स्पेसिफिक फंड्स हैं, एंड ऑनेस्टली इट्स द सेम फंड्स, दे शुड बी द सेम फंड्स, क्योंकि जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एनी एज दे आर अप्रोप्रिएट फॉर. चेंज नहीं चेंज होती. नहीं होती, बिल्कुल चेंज नहीं होती, राइट? द सेकेंड कोहॉर्ट इज women investors, right? जी. How many women take care of their own investment journey? बहुत लोग नहीं है, नहीं. Yeah. but that is increasing, and millennial category में that will increase even more. Absolutely. If you think about it, Yeah. we talked about आधे जो नए इन्वेस्टर्स थे millennials हैं, उनमें से 30% वो women investors. So ये change हो रही है, and you're seeing that change even more within the millennial group. Now, why are we thinking why do we say कि women investors is a big one? क्योंकि और women workforce में आ रही हैं, more women are getting better paying jobs. STEM research, STEM subjects में they're studying, right? So STEM क्या है? Right. Science, technology, engineering, math, Technology. right? ये जो सब jobs हैं वो high paying jobs होते हैं. तो more women are coming into the workforce, right? और उनमें से more of them are studying STEM, यानी कि उनके पास ज़्यादा income है. So you're going to see them become a bigger. Now, I know you're interviewing me, but I'll ask you a question. आप क्या करते हो आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए? खुद करते हो कि और कोई You करता है? know, क्योंकि now see, I come from this space. Correct. And I obviously manage my investments on my own. But I understand what you're saying क्योंकि मैं खुद बहुत सारे investors से on a daily basis मिलती हूँ. And I know कि women investors शायद सबसे कम होती हैं उनमें से. But I do believe that the trend has changed, you know, Avi, because पिछले 10 सालों में जब से मैं investor से बात कर रही हूँ, जब हम workshops करते थे, 10 साल पहले शायद मेरे session में 20% women होती थी. आज I see a 50-50 split. At least interest बढ़ रहा है, which I think is great. Critical, very critical. So I'll give you another example, right? हम investor awareness programs करते हैं, and हर quarter we reach about 30,000 investors. Yeah. Now आप बोल रहे हैं कि now you're seeing 50-50. हमारे लिए it's not really 50-50 as yet, but it has gone up to now 30%, which is a huge shift. It's not bad. Which is very good, right? Yeah. But that has to keep growing, which brings me to the third category of investors, जहाँ पे I think बहुत growth होने वाली है, and हो रही है already, right? Which is B30. B30 cities and towns, growth is going to be much higher. See, if you see in the last 5 years, B30 growth has been 25% compounded. T30 growth has been 21%. So already you're seeing growth ज़्यादा है. Now, the counter to that is B30 is much smaller, therefore growth is looking faster. ऐसा वक्त आएगा जब B30 is bigger than T30. Right? So I think those are the three buckets जहाँ पे हमें लगता है कि investor growth ज़्यादा होने वाली सबसे ज़्यादा होगा. Wow. Okay. You know, I think आपने इस जवाब में अविनाश जी बहुत सारे topics को touch up किया. And let me pick few pearls of wisdom and take from there. So for example, आपने financial goals की बात करी, and अविनाश, मैं खुद बहुत सारे investor awareness programs करती हूँ, and I do believe कि जब भी मैं financial goals के बारे में बात करती हूँ, investors, when you ask them, they don't necessarily have a financial goal. जैसे कि हाँ, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो स्ट्रक्चर नहीं होता है बिकॉज दिस नॉट लिंक टू अ गोल, राइट? एंड आई डू बिलीव कि जब आपके गोल होते हैं तो आपको वो एक डायरेक्शन देते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग. एंड म्यूचुअल फंड्स में एक जो बहुत आसान सा तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने गोल्स के साथ लिंक करने का इज एक्चुअली एन SIP, राइट? आई मीन आप ब्यूटिफुली एक SIP को एक गोल के साथ लिंक कर सकते हैं, एंड यू कैन से दिस इज माई इन्वेस्टमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल.
So now coming to the actual topic of this particular theme for this particular episode, जहाँ हम systematic transactions के बारे में बात करने वाले हैं, we'll start with SIP, systematic investment plan. लेकिन आई कैन टेल यू कि हमारे व्यूअर्स को SIP के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, क्योंकि आई थिंक SIP एक ऐसा टूल है जिसके बारे में हम एज एन इंडस्ट्री बहुत बोलते हैं, एज एन इंडस्ट्री बहुत सिखाते हैं, राइट? तो जस्ट एट अ वेरी हाई लेवल, अविनाश जी, आप अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ या तो रियल टाइम स्टोरीज बताइए, एग्जांपल्स बताइए कि हाउ SIPs कैन डू वंडर्स विद समवन्स इन्वेस्टमेंट, राइट? तो अब कुछ गिव अस सम केस स्टडीज. देखिए, आपने जो SIP के बारे में बात की, आई गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ नगेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये शायद आपको पता नहीं है। जी, ओके. SIPs इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की? आई डोंट नो. यू आर राइट. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। ये जो ओके. कॉन्सेप्ट है, Franklin ओके. Templeton brought it to India. The idea is simple. It comes from the original idea, okay? Dollar cost averaging, right? Remember, हमने बोला था कि the winner is lowest average price. एवरेज प्राइस. वही करना है, right? So what is an SIP? Think about it. हर महीने आप सेविंग्स करते हो, हर महीने आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, सेम थिंग. You put जी. set amount, right? लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट से आपने 10,000 रुपए SIP चालू कर दी. NAV इज 10 रुपीज, तो आपके पास 1,000 यूनिट्स आ गए फर्स्ट मंथ. जी. सेकेंड मंथ मार्केट गोज डाउन, राइट? लेट्स से द NAV इज नाउ 8 रुपीज. आप 10,000 डाल रहे हैं, so you're putting, you're buying more units, so you get 1,250 units, right? तो आपकी एवरेज प्राइस नीचे आ गई. Now third month मार्केट तेजी में है, NAV is gone up a lot, 12 रुपए की NAV हो गई. So now you are still investing, आप 10,000 ही डाल रहे हैं, right? So 10,000 divided by 12, you get 834 units. So you are automatically, हम जो बोलते हैं ना buy low sell high, you are automatically, जैसे मार्केट बढ़ रहा है, you are investing less. जैसे मार्केट गिरता है, you are investing more naturally. तो आपकी जो एवरेज प्राइस है आफ्टर 3 months, राइट, इट विल लुक एट, इट विल स्टिल से 10 रुपीज, बिकॉज आपने 10 की, फिर 12 एंड देन 8, और द अदर वे अराउंड, 8 एंड देन 12. बट आपके जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा हो गए, राइट? सो इंस्टेड ऑफ 3,000 यूनिट्स यू गॉट 3,083 यूनिट्स, राइट? सो आई वुड से दैट ये जो एवरेज प्राइसिंग है, राइट, एज यू ब्रिंग इट डाउन, आपको क्या करना है? आपको 5 साल रुकना है मिनिमम, राइट? मोर नंबर ऑफ यूनिट्स यू कैन अक्वायर. सो मार्केट नीचे जाते वक्त किसी को अच्छा नहीं लगता, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, क्योंकि SIP से यू कैन कीप बाइंग मोर, राइट? आई वुड से दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स एन SIP डज, कि आपके लिए इट इज द बेस्ट मेथड to reduce and invest more at a lower average price. True. Okay. सो हम बोलते हैं कि जब हम SIP करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, एंड यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एंड सो ऑन. एंड जब हम फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं, रिटायरमेंट, जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में इट्स नो लॉन्गर रिटायरमेंट, आई थिंक इट्स फाइनेंशियल फ्रीडम. आई डोंट थिंक, एटलीस्ट आई बिलोंग टू द मिलेनियल जनरेशन, एंड आई हैव सीन कि मेरे आसपास जितने भी लोग, कोई रिटायर नहीं होना चाहता है, इंक्लूडिंग मी, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिले. And I think all of us are investing towards that, right? And I think that's the case with a lot of people these days. और जब भी हम financial freedom या retirement की बात करते हैं, most people believe कि SWP would be a great tool after retirement, right? कि अगर जब हम retire हो जाएंगे तो हम अपने mutual fund से एक fixed amount हर महीने निकाल सकते हैं in the form of SWP. Now, अब मैं चाहूँगी अविनाश जी कि आप हमें, हमारे viewers को थोड़ा SWP के बारे में बताएं, because SWP as a concept, अब लोग पूछने लगे हैं उसके बारे में, अब लोग जानना चाहते हैं कि SWP क्या होता है. एंड ये मैंने ट्रेंड ना पिछले 1 साल में देखा है समहाउ, राइट? मैं 10 साल से काम कर रही हूँ इन दिस स्पेस, पिछले 1 साल से मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं अराउंड SWP. तो आप पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये SWP होता क्या है,
एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल अगेन, लाइक कि अगर आपको एस डब्ल्यू पी यूज़ करना है तो उसके अलग अलग यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं, बिकॉज मोस्ट पीपल थिंक कि सिर्फ अगर आप रिटायर्ड इन्वेस्टर हैं तब आप एस डब्ल्यू पी यूज़ कर सकते हैं, बट पीपल डोंट नो कि आप एस डब्ल्यू पी और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज योर टैक्सेस एफिशिएंटली मे बी, और यू नो, सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एस डब्ल्यू पी के अलग अलग यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं. Perfect. What I'll say initially is that one, you are too young to be worrying about SWP. जी. Systematic withdrawal plan जो है ना, आपको पहले कॉर्पस Hmm. बढ़ाना है before you start withdrawing. But having said Yeah. that, anybody can utilize an SWP, right? SWP का use क्या है? Simplest use is to manage cash flows, right? But उसके लिए आपको कॉर्पस तो चाहिए, right? What is the logic? कि आपने एक बार कॉर्पस बढ़ाई है, यू मेड इट अ डिसेंट साइज, देन यू स्टार्ट विड्रॉइंग फ्रॉम देयर. बट आप एक साथ सब मत विड्रॉ करना. सो लेट्स गिव यू एन एग्जांपल, राइट? फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, राइट, आपके पास अगर 1.5 करोड़ की कॉर्पस है, आपकी मंथली एक्सपेंस इज 50,000, यू नीड 50,000. सो रूल क्या है? देयर इज अ रूल, an unwritten rule called 4%, right? So अच्छा. 4% of your corpus you may withdraw, right? So why 50,000? Meaning साल में आप 60 लाख निकाल रहे हो, which is about 4% of your overall corpus. Now 60 lakhs a year you need, but your remaining amount is still same, right? So हर month आप बस 50,000 निकाल रहे हो. The rest of your funds are still invested. They are still gaining. So if you think, sorry, 6 lakhs, not 60 lakhs. So if you've saved for or withdrawn for 10 years, 10 साल के लिए आपने अगर withdrawal किया है, तो आपने 60 lakhs निकाले out of your corpus. Correct? Corpus. Now, what would you think is your total corpus after 10 years? आपके पास starting point पे 1.5 लाख है, 1.5 करोड़ है. आप हर साल 6 लाख निकाल रहे हो, तो 10 साल के बाद आपने 60 लाख निकाले हैं, 60 लाख right? निकाले. So your corpus would be how much at the end of 10 years? Now, if you just do simple math, आप minus करोगे and all that, you'll be surprised because आपने investment रखी है अंदर. Your corpus is 2.37 crores. So it is higher than your starting corpus. So why does लेकिन that? इसमें हम कौन से फंड से एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, So कौन से फंड से हम एसडब्ल्यूपी so कर रहे हैं? SWP can be done from multiple. आप multiple funds से कर सकते हो, Correct. right? The ideal one a lot of times is hybrid funds. बिकॉज वो बैलेंस हो जाते हैं बिटवीन फिक्स्ड इनकम एंड एक्विटीज. बिकॉज आप पूरे एक्विटीज से करोगे तो देन देयर इज अ रिस्क दैट इफ द एक्विटी मार्केट्स गो डाउन, आपको फिक्स चाहिए 50,000, राइट? सो यू नीड सम सिक्योरिटी, राइट? बट यू डोंट वांट इट ऑल इन फिक्स्ड इनकम बिकॉज ग्रोथ नहीं होने वाली. सो दैट्स व्हाई अ हाइब्रिड फंड, लेट्स से अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बैलेंस और अ मल्टी एडवांटेज. एसेट एलोकेशन फंड, राइट? वैसे फंड में आप अगर जब एसडब्ल्यूपी करोगे, देन यू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट कमिंग आउट, वो आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में से आ जाएगी. द बैलेंस जो जी. है वो ग्रोथ हो जाएगी. दोज बिकम ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स इन योर इक्विटी. दैट्स व्हाई इवन आफ्टर 10 years आपकी कॉर्पस इज लार्जर व्हेन यू बढ़ती ही स्टार्ट. रहेगी. एग्जैक्टली, बढ़ती रहेगी, राइट? स्टार्टेड. सो 1.5 करोड़ से यू गो इनटू ऑलमोस्ट 2.4 crores, एंड जी. स्टिल एवरी ईयर आप 6 लाख निकाल रहे हो. या. So it is both for all kinds of investors. Anybody, जिसी भी लोगों के लिए, जिसी भी इन्वेस्टर को कैश फ्लो मैनेज करनी है, that is what an SWP is best for. Retirement is the ideal thing because वो तो you need to have regular cash flow. ऑफ because आपकी कोर्स. वो that becomes your income. So for anybody retiring, for sure SWP ही करनी है because your rest of your portfolio can continue growing. सो यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट एसडब्ल्यूपी, मुझे बहुत सारे यू नो लोग पूछते हैं कि हम इक्विटी फंड में से ही एसडब्ल्यूपी कर लेते हैं या फिर सिर्फ डेट फंड से कर लेते हैं. एज यू राइटली सेड, फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं. डेट में इक्विटी का अपॉर्चुनिटी, इक्विटी में आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं. सो देयर हैज़ टू बी दैट बैलेंस. Especially, see, the एंड risk is why, because आपको फिक्स्ड अमाउंट चाहिए. आप जब कैश फ्लो मैनेजमेंट या. कर रहे हैं तो आपको यू नो आई नीड 50,000 एवरी मंथ. अगर इक्विटी मार्केट या. नीचे गई एंड यू विल देन अननेसेसरली सेल मोर यूनिट्स,
वो जो आप एवरेज प्राइसिंग की जो बेनिफिट है एसआईपी की वो उल्टी हो जाती हाँ, है, हाँ, राइट? यू हैव टू सेल मोर उल्टी यूनिट्स टू हो गेट द जाती सेम है. अमाउंट. True. So that is not helpful Correct. for you. So that's Yeah. why you want to manage it through a hybrid fund. Okay. Okay. So SWP, wonderful way of withdrawing money from your mutual funds. Now we'll talk about STP. And I was very surprised, Avinashi, to understand this. I was एक बहुत बड़े forum में हम बात कर रहे थे, and I'll not take the name, but we had some really big investors in that forum जो मतलब पिछले शायद decades से invest कर रहे हैं mutual funds में. And surprisingly उनको STP के बारे में नहीं पता था. I just happened to bring up STP as a topic because हम लोग we were talking about अपने financial goals के लिए आप कैसे cash flow को manage कर सकते हैं. We spoke about STP and they were surprised कि STP के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है. And I was like ऐसे investors जो 20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में उनको एसटीपी के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में बताइए एंड प्लीज़ हेल्प एन इन्वेस्टर अंडरस्टैंड कि उसके लिए क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं, कौन एसटीपी एज अ फैसिलिटी यूज़ करेगा. So systematic transfer plan, the simplest approach, सबसे आसान तरीका है कि आप लमसम तो सब करते हैं, सबको मालूम है लमसम क्या है, जी. एसआईपी सबको मालूम है. थिंक अबाउट एसटीपी क्या है, एसआईपी फॉर लमसम. थिंक ऑफ इट दैट, राइट? आप जब एसआईपी करते हो तो देयर इज नो टाइमलाइन, राइट? आप परपेचुअल कर सकते हो, राइट? अगर आप परपेचुअल करोगे तो देन इट कंटिन्यूज, हर महीने आप निकालते जाओगे, इन्वेस्ट करते जाओगे. आप जब लमसम करते हो तो इट्स वन शॉट, इन वन टाइम यू मेक योर इन्वेस्टमेंट. नाउ देयर आर टू प्रॉब्लम्स विद दिस, राइट? एक तो यू आर आस्किंग टू मेक अ परफेक्ट डिसीजन एट दैट टाइम, मीनिंग आपको पता है कि मार्केट इज एट द लो और यहां से बस ऊपर जाने वाली है, हाँ. राइट? नाउ ये तो आपको पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है, करेक्ट? सो हाउ डू यू स्प्रेड दैट रिस्क? एसटीपी, अगर आपको 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं, राइट, तो यू स्प्रेड इट. हर महीने 2-2 लाख डाल दो, हर हफ्ते 2-2 लाख डालो. What that does is आप एक शॉट में यू आर नॉट टेकिंग दैट रिस्क ऑफ द मार्केट टाइमिंग. वो जो रिस्क होती है दैट इज अ वेरी बिग रिस्क, राइट? अ लॉट, सी, एज इन्वेस्टर्स हमें सब को पसंद लगता है जब हम सबसे नीचे प्राइस पे खरीदते हैं एंड देन यू कैन शो फैंसी चार्ट गोइंग अप. वो हमेशा तो होता नहीं है, राइट? सो वी हैव टू मैनेज फॉर द लॉन्ग टर्म. सो एसटीपी इज बेसिकली दैट. You are basically doing an SIP with your lump sum and it's for a fixed amount of time. आप टाइमिंग आप खुद डिसाइड कर लो. आपको अगर 6 महीने में इन्वेस्ट करना है तो यू डिसाइड अकॉर्डिंगली, एवरी मंथ यू पुट इट. आपको अगर 6 हफ्ते में इन्वेस्ट करना है तो यू डिसाइड दैट ऑल्सो, बट एक शॉट में नहीं करना है, राइट? सो इवन विद अ लंप सम, एंड सो द वे टू डू दैट इज आप एक फिक्स्ड इनकम फंड में डाल दीजिए एंड देन यू हैव इट ट्रांसफर एवरी मंथ, एवरी वीक इनटू whichever equity fund you're choosing. An equity fund. Right? So it transfers between the funds automatically. And that makes it easy. Yeah. And yeah. I mean, when people ask me कि हम लमसम करें, SIP करें, तो मैं बोलती हूँ SIP तो करो ही, लेकिन लमसम की बजाय STP कर लो. You'll be much better off. Perfect. Yeah. Exactly. That's the perfect answer. Yeah. And also, do you think STP can also be used? मान लीजिए मुझे अपना retirement goal achieve करना है in a particular year, लेकिन obviously हम सारा withdrawal उस साल में नहीं करना चाहेंगे because what if market volatility happens in that year? So do you think STP could also make sense कि हम 2-3 साल पहले अपने equity fund से debt funds में transfer कर दें थोड़ा पैसा over a period of time? Absolutely. See, as you get, आप जब retirement की age पे आ रहे हो तो your mix already starts to shift. Right? अगर आपको equities ज़्यादा है तो you will have to start shifting that towards one. Why? You will have to do that because you want certainty, ना? वो जो income बंद हो जाती है, you need certainty to manage your expenses. Now that's where absolutely you will then can start. So you will start a reverse. अभी जो कर रहे हैं हम lump sum, you're doing from fixed income into equity. Equity, yeah. At that point, you will start going from equity into equity fixed to fixed income. And then from there, or equity to even hybrid, right? पूरा fixed income नहीं कर सकते हो, right? You shouldn't do that. You want to go into a hybrid. And from hybrid आप SWP करोगे.
जी. correct? So you will that I think between SIP, STP and SWP, आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है इज फुली कवर्ड. एग्जैक्टली. सो बेसिकली अगर हम एक फाइनेंशियल गोल देखें, आप पहले एसआईपी करेंगे, फिर एसटीपी करेंगे, फिर एसडब्ल्यूपी करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर Not फाइनेंशियल in गोल. necessarily that way. The way I would say it is दो ही हैं, SIP, STP and SWP. Because या. आप जब SIP करोगे, you can also get lump sum, right? या. Every year हमें bonus मिलती है. That's a lump sum. ट्रू. You need to invest that. So you do an या. STP for that, right? So SIP, STP, I would say is part of your investment journey. And then also STP, SWP on the reverse of that. ऑन द रिवर्स ऑफ इट. या. ट्रू. ओके. वंडरफुल. सो जब हम इन सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं ना अविनाश जी, आई थिंक टैक्स इज ऑल्सो समथिंग जो बहुत क्लोजली देखा जाता है, राइट? एंड ऑफ कोर्स हम अपने टैक्स को बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं अक्रॉस दीज थ्री. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एस आई पी, एस टी पी और एस डब्ल्यू पी फ्रॉम एन इक्विटी फंड, उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं इन तीनों में? Tax planning, when it comes to mutual fund investments, you're already in a beneficial position, right? Why? Mutual fund tax efficient instrument है, right? आप अगर देखोगे शॉर्ट यू ओनली पेइंग कैपिटल गेन्स टैक्स. शॉर्ट टर्म जी. अगर आपकी ट्रेडिंग है, इफ यू रिड्यूसिंग योर म्यूचुअल फंड यूनिट्स, यू गेट 20%. या. लॉन्ग टर्म 12.5%. हम बोलते हैं कि सभी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो यू शुड बी वरिंग अबाउट 12.5%. And even within that, in your long term, you get your first 1.25 lakhs tax free of your long term Exemption. या. capital gains, right? So आपने अगर redeem किया and you made, let's say, 2 lakhs is your capital gains and it's long term, 1.25 lakhs is free, tax free. You are only paying that 12.5% on 75,000. 75,000. So the tax efficiency of a mutual fund is very attractive. And I think that is one of the simplest reasons why it is an easy, सबसे आसान तरीका है to manage your taxes when you do it through a mutual fund, Okay. right? So I would say that tax planning and tax efficiency comes through when you're doing that. Now, how are your investments taxed also? If first in, first out, Okay. right? So you can look at it saying, okay, my NAV was 10 when I bought it. I'm selling it when it was 20. Simple. 10 rupees I'm Okay. getting multiplied by units. So it's a very simple method to that. Okay. Okay. Wonderful. So just one last question around the systematic transactions, and I think ये आप शायद हमने जो भी अभी SIP, SWP, STP के बारे में डिस्कस किया उसको आप समराइज कर सकते हैं कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? हाउ कैन आई यूज SIP, SWP एंड STP टू बिल्ड वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? SIP इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं, राइट? सो दैट्स द स्टार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. वो शुरुआत होती है. Okay. आप इन्वेस्टमेंट जर्नी SIP से शुरुआत करेंगे. नाउ एज यू आर प्रोग्रेसिंग, आपको बोनस मिला, यू विल यूज STP still as part of your investment journey, correct? जी. Remember, हमने what did we say? STP is basically SIP for lump sum, जी. correct? It's a short term time. So SIP and STP is part of your investment journey. आप एक बार कॉपस तैयार करोगे, then remember we said कि आप STP यूज कर सकते हो to shift from equity to hybrid, डेट हाइब्रिड. right? या. Debt and hybrid. वो उसी के बाद आप SWP करोगे because that's when you start needing a regular income stream. जी. करेक्ट? सो योर आपका जो पूरा वेल्थ मैनेजमेंट का जो साइकिल है, इट्स परफेक्टली मैनेज बिटवीन दीज थ्री. SIP से शुरुआत करो, STP से एनहेंस करो. एट द एंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट साइकिल, आपको जब कैश फ्लो की जरूरत है, तो आप STP वापस करो फ्रॉम इक्विटी टू हाइब्रिड एंड देन SWP फॉर द फाइनल. फुल प्लान इज अराउंड दीज थ्री.
सो अविनाशी, जो मैं अगला सवाल है आपके लिए इज आई एम श्योर आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मिले हैं इन द जर्नी ऑफ द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ बीइंग इन द स्पेस. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से वो मिथ हैं जो आपने देखे हैं. वो इन्वेस्टर्स के बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं अबाउट म्यूचुअल फंड्स. तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि वैसे कौन से मिथ हैं दैट यू हैव सीन एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट. मिथ फॉर इन्वेस्टर्स दो याद आते हैं. नंबर वन ओके. इज कि म्यूचुअल फंड अमीर लोगों के लिए होती है. हाँ, आई एंड एग्री. द या सेकेंड a lot वन of people इज say that. म्यूचुअल फंड और एनी इन्वेस्टिंग इन द मार्केट के हमें मार्केट्स समझने चाहिए. Hmm. आई थिंक दोज टू आर द बिगेस्ट मिथ्स. Hmm. सम सबसे वेल्थी जो इन्वेस्टर्स हैं आर द Hmm. वंस दैट सेट अ प्लान Hmm. एंड देन जस्ट कीप इन्वेस्टिंग. भूल जाते हैं. वहीं पे Hmm. वेल्थ क्रिएट होती है. तो ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है. इनफैक्ट एग्जैक्टली द ऑपोजिट. अमीर बनने के लिए. अमीर बनने के लिए है. एग्जैक्टली. और वी मेड इट इवन स्मॉल इजियर, राइट. सेबी ने वो छोटी एसआईपी प्रोग्राम चालू की है. जी, वी हैव दैट, 250 रुपए की. right? For Franklin Templeton has actually a 100 rupee SIP also, Hmm. right? So you can actually start small, right? Or Amir Bano. Hmm. Right? Don't think that this is only for rich people. Yeah. Right? And the second thing is you don't need to know a lot about the markets. What you need to know, Hmm. आपको ये करना है कि equity markets, there is risk, but there is also growth and opportunity. इंडिया में ग्रोथ होने वाली है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने वाली है. हाउ एज अ इन्वेस्टर कैन यू पार्टिसिपेट? इसका हम जी. कैसे फायदा उठाएं? एंड दैट्स द सिंपल थिंग. म्यूचुअल फंड्स इज द इजीएस्ट वे टू डू दैट. आई डू बिलीव कि अगर आपको इक्विटी मार्केट्स के बारे में नहीं पता है तब शायद म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर यू बिकॉज यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट इक्विटी मार्केट्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल एग्जैक्टली. फंड्स. प्रिसाइसली या. करेक्ट. इनफैक्ट इट्स बेटर. ओके. अगर आपको मार्केट्स के बारे में नहीं पता है तो दैट्स नहीं पता है तो बेटर इन्वेस्टर देन. exactly. So okay, just one last question and I think we would like to know this from you for sure. हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं. ऑफ कोर्स इस एपिसोड में हमने उतना कैटेगरीज के बारे में बात नहीं किया, लेकिन अविनाश जी आप ये बताइए कि आपके पर्सनली म्यूचुअल फंड्स में फेवरेट कैटेगरीज कौन सी हैं आपका. जो अगर हम अविनाश जी का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में हमें कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज दिखेंगी. बहुत सारे कैटेगरीज नहीं है, राइट. इट ओके. डिपेंड्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट डिपेंड्स ऑन वेयर द मार्केट साइकिल इज. बट हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, सो इट डजंट रियली मैटर, राइट. हम्म. हमें फ्लेक्सी कैप बहुत पसंद है, मल्टी कैप Okay. बहुत पसंद है, एंड देन द हाइब्रिड स्पेस, Okay. राइट. फॉर सेम रीजन, राइट. फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप वो एक्विटीज है, वो लॉन्ग टर्म है, वो डिवर्सिफाइड है, राइट. हम्म. और हमें ऐसा लगता है कि यू नीड टू हैव अ गुड डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिकॉज द जी. इकोनॉमी फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स, राइट. हम्म. कौन सा सेक्टर ऊपर जाने वाला है. आई वुड रादर हैव अ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देन सेइंग डिसाइड कि भाई आज हमें कंज्यूमर करना है, कल हमें फार्मा करना है, परसों हमें बैंकिंग करना है. जी. लेट द पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड. तो हमें फ्लेक्सी, मल्टी कैप, ब्रॉड डिवर्सिफाइड, एंड देन टू मैनेज यू नीड टू हैव हाइब्रिड्स. या तो आप बैलेंस एडवांटेज ले लो या तो मल्टी एसेट. दोज आर द वेज आई थिंक. Okay. Okay. Any specific learnings that you've had, Avinashi? I know आपने initially बोला था कि of course आपने बहुत जल्दी अपने investments बेच दिए थे, तो long term was a learning and so on. But in the last in the last 20 years, right, which is जब से आप शायद थोड़े और matured हो गए हैं as an investor, help us understand as a matured investor आपने क्या-क्या गलतियां करी हैं and what have you learned from those? Matured investor, even matured investor गलतियां करते हैं, right? Of course. So Yeah. see, at the end of the day हम सब human हैं, right? The number one enemy for long term wealth growth, right? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? Emotion, right? And that is natural. अगर आप मार्केट्स को नीचे जाते हुए देखते हो तो आपको डर लगता है, and it's natural. जी. लेकिन आप जब वो डर को लेके आप डिसीजंस कुछ करते हो,
then you damage your long-term growth. Yeah. Right? So even as a matured investor, you still have to make those adjustments. अभी भी जब मार्केट ऊपर जाती है तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, हमें कुछ करना चाहिए. When in fact you don't need to. आपके जो SIPs चालू हैं, they are doing their Yeah. job. Right? So I would say the number one lesson learned is emotions को काबू में रखो and stay disciplined. वो discipline होनी चाहिए. And a lot of times देखो, I mean it is human nature, human emotion वो काबू में नहीं होते. हमें डर लगता है, right? और greed भी होती है, right? So what is you have to try and simplify your life. आपको अपनी लाइफ सिंपल करनी है. एंड दैट्स वाई हमें लगता है कि SIPs इज द बेस्ट इन्वेंशन, क्योंकि वो इमोशंस को अलग रखती है. हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डोंट चेंज दैट. गलती सबसे क्या होती है जब आप इमोशंस को लेके SIP बंद करते हो. दैट इज द एग्जैक्ट रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज दैट इज व्हेन SIP को काम करना चाहिए, राइट? बिकॉज आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे जा रही है. So I think the discipline and emotion, ये दोनों go hand in glove. Sure. And precisely why पिछले हफ्ते हमने पूरा एक एपिसोड डेडिकेट किया था टू द थीम ऑफ बिहेवियरल इन्वेस्टिंग, बिकॉज वी डू बिलीव कि इन्वेस्टर बिहेवियर बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होता है इन टर्म्स ऑफ हाउ मच वेल्थ यू गोइंग टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ. Absolutely. So thank you for all your wonderful answers. Thank you, Avinash. I think it was a beautiful conversation. Honestly, I don't want to end the show, but we don't have much of an option क्योंकि हमने already आपसे बहुत सारे सवाल पूछे. Thank you so much for your time. And we do hope we can get you back. I know you have a very busy schedule, but I do hope we can get you back pretty soon. Thank you very much. Enjoyed it thoroughly, Namrata, and absolutely look forward to coming on any of your future episodes. Take care. Thank you, Avinash. Thank you. Take care. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Avinash. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर अविनाश से म्यूचुअल फंड की ग्रोथ के बारे में पूछा इन इंडिया. एंड मिस्टर अविनाश सेज कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ पोटेंशियल देखें, दैट इज वेरी वेरी इमेंस, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही आसान तरीका होता है इन्वेस्टर्स के लिए टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट्स. म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का अभी पेनिट्रेशन देखें वो सिर्फ 5% है, विच मीन्स पेनिट्रेशन को इट शुड गो अप. और जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हो रही है ये पॉसिबल भी है. एंड ही आल्सो सेज कि जो सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो रिटेल इन्वेस्टर से आएगी. ही सेज कि अगर हम म्यूचुअल फंड असेट्स टू GDP रेशियो देखें इन इंडिया, दैट्स अबाउट 17%, और ये जो ग्लोबल एवरेज है ये है करीब 70%. सो विच मीन्स ग्रोथ इज समथिंग वी आर डेफिनेटली गोना सी इन म्यूचुअल फंड्स. फिर हमने मिस्टर अविनाश के साथ इस एपिसोड की थीम के बारे में डिस्कस करना शुरू किया. इस एपिसोड की थीम है सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस. एंड सबसे पहले हमने मिस्टर अविनाश से पूछा कि टेल अस अबाउट SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स. तो मिस्टर अविनाश सेज कि इंडिया में SIPs को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था एंड इट कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग. ही सेज कि SIP जो है एक बहुत अच्छा तरीका होता है टू अचीव लॉन्ग टर्म वेल्थ थ्रू म्यूचुअल फंड्स. ही सेज कि कभी भी लो प्राइस को नहीं देखना चाहिए, लो एवरेज प्राइस को देखना चाहिए. एंड SIP इज अ वंडरफुल वे ऑफ अचीविंग दैट लो एवरेज प्राइस. फिर हमने मिस्टर अविनाश के साथ SWP के बारे में बात किया, विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स. एंड मिस्टर अविनाश सेज कि SWP कम्स इनटू प्ले जब आपका म्यूचुअल फंड कॉर्पस ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है. तो SWP आपको कैश फ्लो मैनेज करने में मदद करता है एंड इट हेल्प्स यू विड्रॉ मनी एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड स्कीम्स. तो विच मीन्स जब आपका कॉर्पस एक डिसेंट साइज पे पहुंच चुका है तब आप SWP कर सकते हैं. ही सेज यू कैन अप्लाई द 4% रूल, विच बेसिकली मीन्स कि आप अपने कॉर्पस से 4% साल का विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू एन SWP, और जो बाकी का कॉर्पस है दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो. सो विच मीन्स आपका बाकी का कॉर्पस तो बढ़ता ही रहेगा लेकिन आप रेगुलर विड्रॉल्स भी कर रहे हैं. सो ही सेज आइडियली एक SWP आप एक हाइब्रिड फंड से कर सकते हैं, विच कुड बी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. तो इसमें आपको ये दिखेगा कि इवन आफ्टर द विड्रॉल आपका जो है पैसा विड्रॉ करने के बाद भी थ्रू SWP आपका जो कॉर्पस बचा हुआ है दैट इज लार्जर देन द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड इट. बिकॉज जब हम इन हाइब्रिड फंड्स को देखते हैं इनमें इक्विटी कंपोनेंट रहता है और ये जो इक्विटी कंपोनेंट है ये आपके रिमेनिंग कॉर्पस को इट विल कंटिन्यू टू ग्रो. फिर हमने मिस्टर अविनाश के साथ STP
STP which is systematic transfer plan के बारे में डिस्कस किया. Systematic transfer plan is a way of transferring money from one mutual fund scheme to another mutual fund scheme at regular intervals. तो Mr. Avinash says कि जो STP होता है वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है to spread your risk. तो he says कि मान लीजिए आपके पास एक lump sum amount है और आपको उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने की बजाय उसमें, क्योंकि उसमें हमें मार्केट टाइमिंग करना पड़ता है, आप STP के थ्रू उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आप ये लमसम अमाउंट एक फिक्स्ड इनकम फंड में डाल के एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन अ मंथली बेसिस या ऑन अ वीकली बेसिस आप एक इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं. सो थिंक ऑफ STP एज एन SIP फॉर अ लमसम अमाउंट. तो ये सेज कि STP एक बहुत अच्छा तरीका होता है टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स, जहां आपको मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है. STP आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने होते हैं. तो यू नो अ फ्यू इयर्स बिफोर यू वांट टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल, आप सिस्टमैटिकली अपना पैसा इक्विटी फंड से फिक्स्ड इनकम फंड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं बिफोर यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल. फिर हमने मिस्टर अविनाश से म्यूचुअल फंड्स में टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करी एंड मिस्टर अविनाश सेज कि म्यूचुअल फंड्स आर वेरी वेरी टैक्स एफिशिएंट. तो अगर हम इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें तो उसमें आपको एक तो 1.25 लाख का हर साल का एग्जेम्पशन मिलेगा, विच मीन्स दैट 1.25 लाख ऑफ गेन्स आर टैक्स फ्री, और उसके ऊपर जो भी आपके गेन्स रहेंगे उस पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा. फिर हमने मिस्टर अविनाश के साथ ये डिस्कस किया कि क्या हम SIP, STP और SWP का कॉम्बिनेशन यूज करके वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं. सो मिस्टर अविनाश सेज कि आप सबसे पहले SIP करेंगे विच इज यूज टू स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड जर्नी, और ये आपको आपका कॉर्पस बिल्ड करने में मदद करेगा. फिर अगर आपके पास कोई लमसम है तो आप STP करेंगे. सो आप STP बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं फॉर लमसम अमाउंट. फिर जब आपका विड्रॉल शुरू होगा तो आप STP से पहले अपना अमाउंट जो है इक्विटी फंड से डेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, देन यू यूज SWP फॉर विड्रॉल. सो जब आपका कॉर्पस बिल्ड हो गया है तब आप बहुत इफेक्टिवली SWP यूज करके उस कॉर्पस में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर अविनाश से म्यूचुअल फंड की 2 मिथ के बारे में डिस्कस किया. व्हाट इज इट दैट इन्वेस्टर्स बिलीव जो एक्चुअली सही नहीं है. तो मिस्टर अविनाश सेज कि सबसे पहला जो बहुत बड़ा मिथ है वो ये है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए अमीर होना चाहिए, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि anybody can invest in mutual funds. जो दूसरा मिथ है वो ये है कि आपको equity markets के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जो भी सही नहीं है. He says कि म्यूचुअल फंड्स हर किसी के लिए है. आप SIPs के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में बहुत आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसीलिए सेबी ने छोटी SIP को भी इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि हर तरीके के इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाएं और इसका बेनिफिट उठा पाएं. बल्कि ही सेज कि म्यूचुअल फंड इवेंचुअली आपको रिच बनाएगा या आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड ही ऑल्सो सेज कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी मार्केट्स की जानकारी होनी जरूरी नहीं है. Anyone can invest in mutual funds. अंत में हमने मिस्टर अविनाश से उनकी फेवरेट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में पूछा है. मिस्टर अविनाश सेज कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और उन्होंने उनके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स और हाइब्रिड फंड्स हैं, बिकॉज ही बिलीव्स इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो थ्रू दीज कैटेगरीज. फिर हमने उनसे उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में भी पूछा है. मिस्टर अविनाश सेज कि जो सबसे बड़ा एनिमी है फॉर एन इन्वेस्टर इज इमोशंस. अगर आप अपने इमोशंस को चेक में रख सकते हैं, अगर आप पैनिक नहीं करेंगे इवन इफ द मार्केट्स आर करेक्टिंग, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे. तो ही सेज कि पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको जो है इन्वेस्ट करते रहना चाहिए डिसिप्लिन तरीके से, एंड कंटिन्यू योर SIP irrespective of how the markets are doing. So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had a great learning experience. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.